Hello, students. In this lecture, we are going to deal with relations. So, before going to relation, we will discuss the Cartesian product of two sets. So, here we have the some discussed topic. We will discuss here the relation. Okay. Now we will start with the relation. Relation. Before going to the relation, we will discuss the Cartesian product of two sets. Let A and B be two sets. B two sets. Then A Cartesian product B is defined as let A and B two set. Then a Cartesian product B is defined as it contains the element of type A comma B where A comes from small a comes from A and small b comes from B. Okay. So for example, here we have two sets. A contains 1, 2, 3 elements. B contains A, B, C, D elements. Okay. So 1 comma A is the one element of a Cartesian product B. 1 comma B is the another element of a Cartesian product B. 1 comma C is the another element of a Cartesian product B. Similarly, 2 comma A is the element of a Cartesian product B. 2 comma B is the element of a Cartesian product B, and 2 comma C. Similarly, 3 comma A and 3 comma B and 3 comma C. These are the elements of Cartesian product of A cross B. And here we can see the geometry too. One correspond A, one correspond B, and one correspond C. Similarly, two correspond A. Here we can see one correspond A. Okay. So in the set form, we can write it here. A cross B equals to contains these elements, and the cardinality A Cartesian product B is itself a set. Is itself a set which contains the 9 element here. So in short, if cardinality of the set A is n and cardinality of the set B is m, then the cardinality of a Cartesian product B, then the cardinality of a Cartesian product B is nothing but n cross m. Okay, n cross m. ये आपकी n cross m cardinality होगी a cross b की. But now we start the relation. What do we mean by the relation? Actually, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी रियल लाइफ सिस्टम में भी रिलेशंस होते हैं, और जैसे कि दो फैमिली के बीच में रिलेशंस होते हैं. मैं और मेरे ताऊजी की फैमिली हो गई, तो मेरे फादर मेरे ताऊजी में ब्रदर ब्रदर का एक रिलेशन हो गया. दीज आर टू डिफरेंट फैमिली. यू कैन कंसीडर एज फर्स्ट फैमिली एज द सेट ए and the second family is the set B. So R is the relation between these two set, these two families. So if I pick up the one member from the family A, and if pick up the from second member from the family B, then there exists a relation between them. For example, my father and my uncle both are the brother. There is a relation between brothers. There is a relation between these two as a brother. So me and my uncle, there is a relation between nephew, between me and my uncle as nephew and uncle. So here we have the many various relation. Okay, where there exists a various relation, different kind of relation are there. So ये तो बिटवीन टू सेट्स हो गए, बिटवीन टू फैमिलीज हो गए. ऐसे ही इन ए फैमिली भी रिलेशन बनता है. जैसे मेरा और मेरे फादर के बीच में एक रिलेशन बनेगा, मेरे और मेरे ब्रदर्स के बीच में रिलेशन बनेगा, है ना. फिर अब रिलेशन होता क्या एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स? A relation of between two sets A and B, A and B is the subset of A Cartesian product B. जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B है आपका, इसका कोई भी सबसेट आप लेंगे वो एक रिलेशन बनेगा. दैट इज R is the subset of A cross B, then R is the relation. R is the relation, and it written as like R A arrow B. Okay, A से B. Geometrically, if you see it, if A is the set and B is another set, then R is the relation from A to B. And the set A
is called domain and the set B is called codomain. The elements of set A are known as preimage and the elements of set B are known as images. Okay, fine. So if cardinality of A is n and cardinality of B is n, okay, why are we pick upping the same element? We should change it. If cardinality of A is n and cardinality of B is m, then the number of relation, this symbol stands for the number. Okay, we are choosing it as a number of total number of elements. Now, total number of relations from the set A to set B is nothing but the total number of subsets. जब बात करें कि A क्रॉस B की कार्डिनेटी ऑफ n m है ना, और हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है इन द बेसिक लेक्चर ऑफ सेट कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट A कंटेनिंग एन एलिमेंट इक्वल्स टू द पावर n. तो अगर A क्रॉस B में nm एलिमेंट है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर m बन सकते हैं. और ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? रिलेशंस. तो बिटवीन टू सेट्स A and B containing the elements of nm, we have the 2 to the power nm elements. Okay, जैसे कि अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहीं पे लिख कर लेते हैं, हमारे पास जगह भी है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना. जैसे हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, if cardinality of A is 2 and cardinality of B is 3, then total number of relations from A to B, then total number of relations R oblique L is stand for the relations, okay, equals to 2 to the power 2 into 3, that is 2 to the power 6. These are the total number of relations, 2 to the power 6. Okay, here we are discussing the general case के कितने होंगे, है ना. if set A contains n element, वो जो हमने 2 to the power nm लिखा है वो उस तरीके से निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस. हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. we have the another way to find out the total number of relations from the set A to set B. If set A contains n number of elements and set B contains m number of elements, okay, so A Cartesian product B contains nm elements, okay. so आप कैसे कह सकते हैं कि nm में से आप कोई भी एलिमेंट ना लें तो एक एम्प्टी सेट बनेगा. और एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट. तो एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट है A क्रॉस B का, तो वो एक रिलेशन बनाएगा. यानी कोई भी एलिमेंट आप चूज ना करें तो भी एक रिलेशन बनेगा, या फिर एक एक एलिमेंट आप सब में से चूज करें तो भी एक रिलेशन बनेगा, या फिर दो एलिमेंट आप चूज कर लें तो भी एक रिलेशन बनेगा, या फिर तीन एलिमेंट आप चूज करके चलें तो भी एक रिलेशन बनेगा, या फिर सारे के सारे एलिमेंट आप चूज कर लें इसी तरीके से तो भी एक रिलेशन बनेगा, है ना. तो ये जो वैल्यू आपके पास अगर आपको पता है टाइप्स ऑफ ये प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्बिनेशन से nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn की वैल्यू 2 टू द पावर n होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर n into n. ओके, so it is the formula to find out the total number of relations from the set A to set B. Okay, now types of relation. Okay, और यहाँ पे आप रिलेशन से कुछ एग्जांपल्स भी कोट कर सकते थे. यहाँ पे आप कुछ एग्जांपल्स आप डिस्कस भी कर सकते हैं रिलेशंस के लिए. ओके, चलिए पहले हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के पास में. व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्सिव रिलेशन? अ रिलेशन ऑन ए सेट ए. अब मैं बता दूं कि रिलेशन ऑन ए सेट ए, जैसे कि मैंने बात करी कि बिटवीन टू सेट होता है, ऐसे ही रिलेशन ऑन ए सेट ए होता है. अगर आपको एक सेट ए दे दिया तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, इसका कोई भी सबसेट है ना, एक रिलेशन बनेगा. तो ये रिलेशन ऑन ए सेट कहलाता है. रिलेशन ऑन ए सेट बिटवीन टू सेट नहीं, ऑन ए सेट. जैसे कि एक ही फैमिली में जो रिलेशंस बनता है. रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है ऑन ए सेट डिफाइंड है. ये डेफिनेशन एक्चुअली ये गलत यहाँ पे लिखी गई थी. ओके, डोंट सी इट. तो फॉर ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम कैसे देखते हैं कि फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, A, A should belongs to R, A, A should belongs to R.
ओके, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए के अंदर आपके पास 1 2 3 एलिमेंट है, ए के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो इनमें से कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा? देयर आर रिटन 5, देयर आर रिटन आई थिंक 5, okay, there are written 5 relations. So if you talk about 1 comma 1 2 comma 2 2 comma 3, so obviously 1 is the element of a, then 1 comma 1 should belongs to the relation, 2 is the element of a, then 2 comma 2 should belongs to the relation, 3 is the element of a, then 3 comma 3 should belongs to the relation. इनके अलावा कोई एलिमेंट आए या ना आए रिफ्लेक्सिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एलिमेंट जरूर आनी चाहिए. अच्छा, रिफ्लेक्सिव, जैसे कि आप ये 1,1 2,2 यहाँ पे 3,3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बना, ये बन गया और ये नहीं बना. जैसे कि R3 एम्प्टी सेट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, और जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए अगर मेरे पास 1 2 3 एलिमेंट है तो उसमें 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए. अब R4 की बात करते हैं, R4 पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें भी 1 1 एलिमेंट है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है. R5 बनेगा क्योंकि इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 elements. These are the reflexive relation. Okay. So if the cardinality of A is n, then A cross a Cartesian product A can be written is like this: 1 comma 1 1 comma 2 1 comma n, 2 comma 1 2 comma 2 2 comma n, or similarly n comma 1 n comma n n comma 2 n comma n. So there are n cross n number of elements in A cross A. N square elements are there. तो अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल पे मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है, नॉन डायगोनल पे n स्क्वायर माइनस n एलिमेंट है, और जो डायगोनल से ऊपर है n स्क्वायर माइनस n बाई 2 है, जो डायगोनल से नीचे है n स्क्वायर माइनस n बाई 2 है ना. तो जब आप बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो जो डायगोनल के एलिमेंट है 1,1 को आना ही पड़ेगा रिलेशन के अंदर, इसके पास एक ही ऑप्शन है. ऐसे 2,2 को भी रिलेशन के अंदर आना पड़ेगा, इसके पास भी एक ऑप्शन है. ऐसे ही 3,3 को भी रिलेशन के अंदर आना पड़ेगा, इसके पास भी एक ही ऑप्शन है. अप टू n क्रॉस n, इसको भी रिलेशन के अंदर आना पड़ेगा, इसके पास भी एक ऑप्शन है. तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबके पास एक एक ऑप्शन है टू मेक द रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब जब नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास n स्क्वायर माइनस n है, उनमें से कोई भी एलिमेंट ना आए, उनमें से अगर कोई भी एलिमेंट ना आए, यानी कि n स्क्वायर माइनस n c2 c0, इसमें से कोई भी एलिमेंट चूज ना करें आप, तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा. और का मतलब प्लस कि n स्क्वायर माइनस n में से कोई एक एलिमेंट ले लेके आप कर लें तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, या फिर दो एलिमेंट लेके आप चलें तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा, या फिर सारे के सारे एलिमेंट ले लें तो भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेगा. तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनेंगे 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n, यानी कि 2 टू द पावर n into n minus 1. These are total number of reflexive relations. For example, if the cardinality of A is 3, then the total number of reflexive relation equals to 2 to the power 3 into 3 minus 1, that is 2 to the power 6. ये 2 to the power 6 जो बनेंगे आपके पास total number of reflexive relation बनेंगे. Okay. Identity relation, a relation subset of A cross A is defined as it contains the element of type A cross A. एक रो से 4 ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक रो से टाइप का ही एलिमेंट होंगे, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा. जैसे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि एक रो से के टाइप के एलिमेंट तो होंगे, उससे अलग एलिमेंट भी हो सकते हैं या नहीं भी हो, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहेगा. लेकिन इसमें सिर्फ यही एलिमेंट होंगे, यानी कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, और डायगोनल एलिमेंट होने के बाद ये एक ही है, तो यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा यूनिक बनता है, एक से ज्यादा कभी नहीं बनते. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द सिमेट्रिक रिलेशन? A relation, a subset of A cross A is called the symmetric relation. If A, B belongs to R, this implies that B, A belongs to R. अगर A B R के अंदर belong करता है तो B A B R के अंदर belong करना चाहिए. और इसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि पहला रिलेशन है एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सिमेट्रिसिटी बनी रहेगी, क्योंकि इफ की कंडीशन है, यहाँ पे गौर करना, अगर ए बी है तो बी होना चाहिए, अगर ए बी नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिमेट्रिक नहीं है, वो सिमेट्रिसिटी बनी रहेगी उसकी. दूसरा है R2 1 1 2 2 3 3, यानी कि
आपके पास 1 1 है, 1 1 1 1 है तो उसका उल्टा भी 1 1 ही होगा, 2 2 है तो उसका उल्टा भी 2 2 होगा, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा। R3 इज द सिमेट्रिक रिलेशन, R4 इज नॉट द सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि इसमें 2 3 है, 3 2 नहीं है। सिमिलरली R5 की बात करते हैं तो 2 3 है, 3 2 है, R5 ओके, R5 इज दिस सेट। इसके बारे में बात करते हैं तो 2 3 है तो 3 2 भी है हमारे पास, 2 1 है तो 1 2 भी है हमारे पास, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाएगा। सो इफ द कार्डिनेलिटी ऑफ A इज n एंड द डायगोनल एलिमेंट्स इज n, जैसी बात है कार्डिनेलिटी ऑफ A अगर n है तो एक क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर, उसके अंदर जो उसकी कार्डिनेलिटी हो जाएगी n स्क्वायर, डायगोनल पे n एलिमेंट होंगे, नॉन डायगोनल पे n स्क्वायर n एलिमेंट होंगे, अपर नॉन डायगोनल पे n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट होंगे, लोअर नॉन डायगोनल पे n स्क्वायर माइनस n बाई 2 एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो जो आपके पास डायगोनल के एलिमेंट है उसमें से कोई एलिमेंट आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता सिमेट्रिसिटी पे, यानी कि हर एक एलिमेंट के पास में दो दो ऑप्शन है, हर एक एलिमेंट के पास में दो दो ऑप्शन है। एन एलिमेंट्स डायगोनल पे कितने हैं एन, तो 2 इंटू 2 इंटू अप टू एन टाइम्स, तो 2 टू द पावर एन। एंड कहानी अभी खत्म नहीं होती, नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में बात करनी है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 है। अब इनको सिमेट्रिक रिलेशन बनाने के लिए पेयर में आना पड़ेगा, अगर 1 2 आ रहा है तो 2 1 भी आएगा, अगर 1 2 आया तो 2 1 भी आएगा। तो अगर आप बात करें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की, यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में जो आएंगे वो पेयर में आएंगे, या तो पेयर आए या तो आए, जैसे 1 2 आया 2 1 आया, या तो ये एक साथ आए या फिर ये एक साथ ना आए। हर एक पेयर के पास में दो ऑप्शन है, टोटल पेयर आपके पास एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 पेयर है। तो इसी तरीके से इसी सोच के साथ में जब आप इसको निकालते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन बाई 2 सी जीरो, कोई भी एलिमेंट ना है, या फिर एक पेयर ले लें कि एक पेयर चूज करने के इतने तरीके, या फिर सारे पेयर चूज करने के इतने तरीके, है ना। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बनेंगे 2 टू द पावर n इनटू 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2, दैट इज 2 टू द पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक है, दैट इज 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई 2, 2 टू द पावर n प्लस 1 बाई 2, ये जो लिखा है सिंपली कैलकुलेशन बाई इट, ओके। और 2 टू द पावर सिग्मा n, सिग्मा n का मतलब है द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की वैल्यू आपकी यही होती है, तो सम टाइम ये भी आपका एक ऑप्शन होता है, ओके। नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव सबसेट ऑफ a क्रॉस a इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन if a comma b and b comma c belongs to the relation, then a comma c should also belongs to the relation, ओके। अगर इफ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा, तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे R1 है, फाइव इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन है फर्स्ट क्लास। नंबर 2 1,1 है दूसरे रिलेशन में, 1,2 भी है, तो 1,2 शुड बिलोंग्स टू, यस R2 है। R3 नहीं है क्योंकि 2,3 and 3,2 belongs to the relation, then 2,2 should also belong to the relation, तो R3 is not the transitive relation। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation is said to be equivalent if it is reflexive, symmetric, and transitive relation। If it is reflexive relation, symmetric relation and transitive relation, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है आपका। चलिए इसमें छोटे छोटे से एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लगता है मुझे, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल है कि R is a relation which contains the element of type x, y such that x is the wife of y, x is the wife of y, x y की वाइफ है,
ये एक रिलेशन है। तो इस तरह का रिलेशन क्या होगा? इज इट रिफ्लेक्सिव? पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए x x टाइप का एलिमेंट रखेगा ये। और x x टाइप का मतलब क्या है कि x इज द वाइफ ऑफ x इज वाइफ ऑफ x। it is not possible, it is not possible, so not a reflexive relation. Okay, symmetric relation, symmetric relation यानी कि if x y belongs to r, then y r, y x should belongs to r, so it is also not possible. इसका मतलब ये हो गया कि अगर x y की वाइफ है तो y भी x की वाइफ होनी चाहिए, नॉट पॉसिबल, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं बनाएगा। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं इसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन बनाता है ना? कैसे? x इज द वाइफ ऑफ y। अगर हम कंडीशन देखें कि इफ ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन क्या है, इफ x y बिलोंग्स टू, इफ x y एंड y z बिलोंग्स टू r, then x z should belongs to r, है ना? भाई साहब पहले तो इफ वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि x y यानी कि x इज द वाइफ ऑफ y, देन y इज द वाइफ ऑफ z, इज नॉट पॉसिबल। अगर x y की वाइफ है तो y जेंट्स हो गया, और y जेंट्स हो गया तो z की वाइफ नहीं हो सकता। तो इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो हम देन वाली चेक क्यों करेंगे? तो ये फर्स्ट क्लास ट्रांजिटिव है, फर्स्ट क्लास ट्रांजिटिव रिलेशन। In the next video, in the next lecture, we will study the rest part of the relations and other types of the relation with some beautiful examples. So guys, like, subscribe and comments in the comment box. You can give the suggestions too. So see you in the next class with very good or interesting topics.